Hello everybody. Today we will move further towards next about the story of village Palanpur. In the previous video we discussed about one factor of production, that is land. We discussed about the methods of cultivation, multiple cropping and modern farming, their impact of modern farming, then how the land is distributed among various farmers of the village Palan. Today we will move further towards the next important factor of production, that is labor. बच्चे लेबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज एक लेबर ही ऐसा है जो सारा जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को यूजफुल बनाता है और हेल्पफुल बनाता है. It is only labor who makes use of all the factors, who combines of all the factors and make them into and produce the output. स्मॉल फार्मर्स जो हैं, जो हमारे जैसे हमने ऊपर वाली इसमें नज़र आ रहा है हमारा, जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, वो वो अपना लैंड खुद ही कल्टीवेट करते हैं. दे हैव देयर ओन लैंड, क्योंकि उनका लैंड इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो दे हैव वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड विच दे कैन कल्टीवेट देमसेल्व्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेम्बर्स. No, in this case no person is hired because it is a very small size of land. And then comes the farm laborers are hired by the medium and large farmers who have a large piece of land. जिनके पास ज़्यादा लैंड है, बड़ा लैंड है, they cannot do work on their own, so they hire the farm laborers, and they farm laborers work on the fields. Now these farm laborers get wages in return of their work. The wages can be paid both in cash and in kind. In cash, sometimes what happens, the laborers get wages only in cash, उनको पैसा ही दिया जाता है. But in sometimes what they do, they give in kind. Now what is kind? Kind क्या होता है? पैसे के अलावा अगर हम किसी और फॉर्म में उनको उनके काम की रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसको हम इन काइंड बोलते हैं. दैट कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स. जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो हमारी प्रोड्यूस आएगी, कुछ पोर्शन विल बी पेड टू दीज लेबरर्स. सो दैट इज़ द wages. These are paid in kind. Now next factor of production is physical capital. Physical capital is divided into two parts: fixed capital and working capital. Now what is fixed capital? Fixed capital is basically the capital that can be used in production for many years. Fixed capital हमारी वो होती है जो हम सालों साल यूज़ करते रहते हैं, जो फिक्स होती है एक नेचर में, एक तरह की. जैसे आप एक अपने घरों में देखो बेटा, हम कार खरीदते हैं या हम घर बनाते हैं, वो ये तो नहीं है कि घर में हम बस महीना रहेंगे, महीने के बाद में एक नया घर बनाएंगे. ऐसे तो नहीं होता ना, ये तो सालों साल चलता है ना. कई बार जनरेशन टू जनरेशन भी चलता है. हम व्हीकल लेते हैं, कोई स्कूटर ले लो, कार ले लो, कोई भी ऐसा व्हीकल इफ यू टेक, तो वो व्हीकल भी हमारा जो है वो फॉर द टाइमिंग यूज़ होता है, जैसे फॉर 5 years और 10 years एज द केस मे बी. सो दिस इज़ अ fixed capital. Your money is invested on fixed capital. In the same case, in case of farming, जो फार्मर्स फ्लो लेते हैं, जनरेटर्स लेते हैं, टर्बाइंस लेते हैं, कंप्यूटर्स लेते हैं, विच आर यूज्ड इन कंटेक्स्ट टू फार्मिंग, these all comes in fixed capital. Next is working capital. Now what is working capital? Working capital is basically the sum of total raw materials and money in hand. जितना भी पैसा देखो बेटा हमारे पास होता है, हमने इन्वेस्ट करना है, हमने यूज़ करना है, जो हम डेली की चीज़ें खरीदने के लिए हम यूज़ करते हैं इन कंटेक्स्ट टू फार्मिंग. फार्मिंग के लिए हमें जैसे फर्टिलाइज़र चाहिए,
सीड्स चाहिए, जो हमें मतलब थोड़े पानी के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल जो हमारा चाहिए, वो सारा चीज़ें हमारी आ जाएंगी वर्किंग कैपिटल में। दिस इज़ ऑल अबाउट physical capital. Now come this is all about your physical capital. Now the last comes human capital. Next factor is human capital. Human capital क्या होता है? It is a man power, जो लोग, it is a skill and knowledge among people that makes them efficient enough to combine all the factors of production to make output. इसका मतलब क्या है? जो लोग हैं, हम आजकल की जनरेशन में देखो, हम लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनको स्किल्स एक्वायर करवाते हैं, हम उनको देखो आफ्टर +2 व्हाट वी डू, बेटा यू डू ए डॉक्टरेट, you become doctorate, you become engineer, you become lecturer, you go in teaching profession, or you do anything else. मास्टर्स डिग्री करो, प्रोफेशनल नॉलेज एक्वायर करो, टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करो। उन सब चीज़ों से हम क्यों करवाते हैं बच्चे को? सो दैट दे बिकेम enough they efficient enough to combine all the resources with them to make up or to make a useful output, कि वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक काम की चीज़ बना सकें, वो अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को यूज़ करके वो अपनी लाइफ को प्रॉस्पर बना सके। इन द सेम वे एग्रीकल्चर में व्हाट वी डू, ये जो हम एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमारी खुली हुई है, यहाँ पे लुधियाना में है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। व्हाट दे डू, दे ट्रेन द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली, उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वो इतना अच्छा काम कर सके कि उनकी प्रोडक्शन, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सके, उनको प्रॉपरली वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इन्वेंशंस, लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ करके दे टू मेक अ प्रॉपर टू मेक मोर आउटपुट आउट ऑफ द लेस इनपुट। उस टाइम भी, एट दैट टाइम ऑल्सो, जो जिसकी हम विलेज पालमपुर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत ही जितनी नॉलेज लोगों के पास थी उन सबको वो कंबाइन करके वो करते थे। कैसे उन्होंने ट्यूबवेल्स को यूज़ किया टू इरिगेट द लैंड प्रॉपरली, कैसे उन लोगों ने ये हमने पीछे फार्मिंग में लैंड में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग उन्होंने यूज़ की। It is only the human capital who make use of all these things to make the more output, so that the production is more, output is more. So now next comes how much capital is needed in farming. अब देखो, अब ये कोई भी हम चीज़ करते हैं, कोई भी हम काम शुरू करते हैं, it needs a lot of money. Now small farmers, what they do, they do not have such much of money, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास अपना लैंड भी नहीं होता। अगर छोटा मोटा लैंड उन लोगों के पास है भी है, सो वो अपने कैसे गुजारा करते हैं। अब जैसे आप नॉर्मल लाइफ में जाओ, देखो गरीब लोग कैसे गुजारा करते हैं। व्हाट दे डू, दे बोरो मनी फ्रॉम अदर पीपल। In the same way, small farmers of that village, they borrow money from large farmers or village moneylenders to cater to their needs, ताकि वो अपना ये जो फार्मिंग का काम, फार्मिंग में जितनी कैपिटल चाहिए उसको लगा के वो काम कर सके। नेक्स्ट कम्स मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स। नाउ व्हाट दे डू, दीज टाइप ऑफ फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, एज वो पहले ही अमीर लोग हैं, उन लोगों की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है, सो देयर प्रोडक्शन इज़ मच मोर देन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि जितना उन लोगों ने सेल्फ कंज्यूम करना है उससे ज़्यादा उन्होंने प्रोड्यूस किया है। सो व्हाट दे डू, द डिफरेंस के वो क्या करते हैं, दे सेल द डिफरेंस इन द मार्केट। सरप्लस व्हीट जो होती है, दे सेल इट इन द मार्केट टू द ट्रेडर्स टू फेच मनी, तो वो उससे वो पैसा जनरेट करते हैं, वो ट्रेडर्स को सेल करते हैं, ट्रेडर्स सेल इट टू द शॉपकीपर्स इन टाउन्स एंड सिटीज़। सो इस कंसेप्ट में बेटा एक चीज़ आपको और समझ आ जाएगी कि जब हमारी
कंजम्पशन इज मोर देन द प्रोडक्शन। जब हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा होता है और हमारी कंजम्पशन कम होती है तो इट मीन्स क्या है, आपके पास सरप्लस बच गई। तो सो व्हाट वी डू, वी सेल दैट इन द मार्केट एंड वी जनरेट प्रॉफिट्स। नाउ इसमें एक सेकेंड केस पे आ सकता है। सेकेंड केस में क्या, पहले केस में मैंने आपको बोला है प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा है, कंजम्पशन हमारी कम है। दूसरे केस में अगर हमारी प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, सो व्हाट यू डू, आपके पास तो पहले ही एक्स्ट्रा तो है ही नहीं है ना, यू हैव टू बोरो बाय इट फ्रॉम अदर्स। इट दीज कम, दिस कैटेगरी फॉल्स इन केस ऑफ अबव स्मॉल फार्मर्स, कि जिनके पास प्रोडक्शन ही इतनी हुई नहीं है कि वो सेल्फ कंजम्पशन कर सके, तो मार्केट में कहाँ से बेचेंगे, उनका प्रॉफिट नहीं होगा उस केस में। और एक थर्ड केस आता है जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक लेवल की होती है। अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 1 क्विंटल आपकी प्रोडक्शन हुई है और 1 क्विंटल आपकी कंजम्पशन हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, नो सरप्लस, कोई ना फालतू है, ना आपने किसी से बोरो करना है, ख़रीदना है, और ना आप कहीं बेच सकते हो। सो आप अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही आपने बनाया है। सो दीज आर द 3 केसेस विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। That is all about this topic. Now if you have any difficulty in this topic, you can give your feedback in the comment box. Thank you.